Today I am going to discuss the Faraday's law of electromagnetic induction and the Lenz law. At first I am going to start the Faraday's law. In the previous class I discussed that when there is a change in the magnetic flux passing through a closed conducting loop, then an EMF will induced, and this is known as the electromagnetic induction. So concerning to that electromagnetic induction, Faraday gave a law, and that law is known as the Faraday's law of electromagnetic induction. At first, what is the law? Whenever the flux of the magnetic field over area bounded by a closed conducting loop changes and EMF is produced in the loop, means कि जब तक किसी एरिया जो एक सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है, दिस इज द क्लोज्ड लूप एंड दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय दिस क्लोज्ड लूप एंड दिस क्लोज्ड लूप इज मेड ऑफ द कंडक्टर, और इस एरिया से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में जब तक चेंज होता रहेगा तब तक एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और इस लूप में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस ईएमएफ, एंड दिस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई एम बाई dt, and if the loop has so many turns, अगर वायर के कई फेरों में लपेट के बनाया गया है तो then the flux, the total area is n times, so we can put the capital N, and this capital N is the number of turns. Thus we can see that this is the EMF induced, and this EMF is equal to the rate of change in negative of the rate of change in the magnetic flux over a area bounded by a closed conducting loop. अब हम लोग यहाँ ये देखना चाह रहे हैं कि ये माइनस साइन का रोल क्या है. तो ये माइनस साइन का रोल है कि ये बताएगा कि EMF की डायरेक्शन क्या होगी. जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर यहाँ पर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी. अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ नेगेटिव होगी, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा. और अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, तो ईएमएफ पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा. तो इस प्रकार से अब हम लोग इस फ्लक्स की बात करते हैं. तो दिस फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट डी एस, एंड I discussed in the previous class what is the magnetic flux, and this flux, so we can say that the change in the flux will depends on so many factors, and those factors are, this is the BDS cos theta, and so the factors are the strength of magnetic field, strength of magnetic field. We can also say that magnitude of the magnetic field, ds area of this loop area, and this cos theta is the angle between B and ds. मतलब एरिया वेक्टर B और एंड ds के बीच की एंगल अगर थीटा है तो इस थीटा पर डिपेंड करेगा. तो थ्री फैक्टर्स आर देयर. One is the magnitude of this magnetic field, second is the area, and third is the angle between the magnetic field and the area vector. तो इस तीनों में से कोई भी चेंज होता है, then we can say that there is a change in the magnetic flux, and then there will be the
electromagnetic induction, and induced EMF is will be obtained by this relation. Now the what is the unit of this flux? And the unit of this B is the Tesla, and the unit of the area is meter square. So the unit of the magnetic flux is Tesla meter square, and SI unit of this is the Weber. So 1 Weber is equal to 1 Tesla meter square. So this is the SI unit of this magnetic flux. Now if the loop has a resistance R, अगर इस loop की resistance R है, and then we can say that the electric current, induced electric current, this is the I is equal to E divided by R, and thus equal to minus N d phi m by dt divided by R, and this I is known as induced electric current. So this is the induced electric current, and this is the induced EMF. Now I am going to discuss the Lenz law, and for this, at first I go back to the previous concept of this dipole moment produced by an current carrying loop. एक current carrying loop एक डाइपोल कैसे क्रिएट करता है उसकी बारे में थोड़ा सा फिर हमको रिन्यू करना पड़ेगा आपको. सपोज कर लीजिए कि करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन इन दिस लूप, और आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आई डिस्कस्ड दैट कि अगर आप इसके मैग्नेटिक डाइपोल जानना चाहते हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन हमने बताया था कि NIA होता है, और एंगल अगर होता है दोनों के बीच का एंगल कितना है, सो यहाँ पर एंगल 0 होगा, सॉरी 90 होगा, इसलिए नहीं लिख रहे हैं अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है तो NIA ये वैल्यू हमारे पास है. अब यहाँ पर इस डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, उसके लिए मैंने कहा था कि यू मे यूज दी राइट हैंड थंब रूल, एंड दिस इज दी राइट हैंड थंब रूल. मतलब हम अपने फिंगर को इस प्रकार से कर्ल करते हैं और थंब को परपेंडिकुलर रखते हैं, यानी कि ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का, और ये डायरेक्शन होगी किधर, किसकी होगी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगी आपके पास डाइपोल मोमेंट का. अब हम डाइपोल मोमेंट के जानते हैं इस बात को कि मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो किस डायरेक्शन में डाइपोल क्रिएट करता है, वो आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की ओर. तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम सपोज कर लीजिए कि ऐसे डायरेक्शन में इधर से देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है एंटी क्लॉक, इधर से देखेंगे तो दूसरे क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगा. तो जिस फेस को आप देखते हैं वैसे सोचिए. तो हम यहाँ दो इसको जानने के लिए इजी वे और भी बता रहे हैं कि अगर ये लूप है तो इस लूप का जो फेस है, ये फर्स्ट फेस, ये कैसा बिहेव करेगा, उधर का फेस कैसा बिहेव करेगा. उसके लिए बहुत आसान सी तरीका एक है कि आप N और S लिखिए और N पर एक एरो लगाइए ऐसे. अब S पे एक एरो लगाइए. अब आप देखेंगे कि N की जो एरो है ये क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है, और S की जो एरो है वो क्लॉकवाइज शो कर रहा है. N की एरो कैसे शो कर रहा है, ये कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और S की एरो कैसे शो कर रहा है, क्लॉकवाइज. तो आप क्या करेंगे, ये जो फेस है इसको अगर इधर से हम देखते हैं तो ये हमें दिखाई पड़ता है कि ये क्लॉकवाइज है, यानी ये फेस इसका
साउथ पोल होगा। और अगर जैसे सपोज कर लीजिए, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहते हैं कि आपके पास अगर ये जो है ऐसे एक रिंग है या ऐसे इलेक्ट्रिक करंट, इस फेस को देखते हैं तो ये साउथ है, और इधर से देखेंगे तो ये करंट आपको उल्टा दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो हमारा फेस जो होगा वो ऐसे दिखाई पड़ेगा, तो नॉर्थ फेस होगा। तो एक डाइपोल बन गया जिसका नॉर्थ और साउथ हम असाइन कर सकते हैं कि कैसे होगा। तो हम अगर नॉर्थ, यानी कि अगर ये इलेक्ट्रिक करंट ऐसे होता अगर, तो हम ये कहते हैं कि ये नॉर्थ पोल बनता। ये देख लीजिए ऐसे करके, ये एन हो गया, थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, ये एन हो गया और ये एस हो गया। तो इस प्रकार से आप पहले तो ये समझ सकते हैं कि नॉर्थ होगा कि साउथ होगा। अब हम इसको समझना हमें है कि ये लेंज लॉ है क्या चीज। तो एट फर्स्ट व्हाट इज द लेंज लॉ? एक्चुअल में कि डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज दैट हैज प्रोड्यूस्ड इट। मतलब हम इसको समझने के लिए ये देखिए कैसे हम कहना क्या चाह रहे हैं। सो हमारे पास एक नॉर्थ और एक साउथ पोल, एक छोटा बार मैग्नेट है। यहां पर एक क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप है, हम इसको इसके पास ले जाते हैं तो यहां ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। अब हमें पता लगाना है कि ये इलेक्ट्रिक करंट ऐसे होगा या ऐसे होगा, ये पता लगाना है। ये कैसे पता लगाएंगे? अब यहां देखते हैं क्या कि ये अगर इसके पास हम ले जाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो भी होगा, तो ये जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट होगा तो ये खुद एक अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्योंकि जानते हैं कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस इट्स मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? अब हमने लेंज का कहना ये था कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट will be in such way that it always opposes the cause that produced it। मतलब लेंज का कहना था कि जो कारण इसको प्रोड्यूस किया है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट को, उस कारण को अपोज करेगा। ऐसे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए। अब यहां दो बात है। अब देखते हैं थोड़ा सा, अगर हम कहते हैं कि ये अगर ऐसे इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा आपका साउथ पोल। यहां इसका मतलब हुआ कि क्या होगा, ये अपोज, यहां इसकी तरफ जाने से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हुआ था, तो ये क्या कर रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है वो उस जाने को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि क्या जानते हैं, नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होता है, तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये अपने कारण, जिस कारण से हुआ उसको और सपोर्ट कर रहा है। लेंज का कहना था क्या कि डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस इट्स ओन कॉज, अपने कारण को या जिस चेंज के कारण हुआ है उस चेंज को अपोज करेगा। अब यहां इसीलिए ये नहीं होगा, तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी ऐसे, और ऐसे होने का मतलब है कि ये फेस इसका बन जाएगा। देख लीजिए जैसे लिखते हैं ना नॉर्थ, और जब नॉर्थ बनेगा तो ये क्या करेगा, रिपल्सन होगा, यानी जो कारण इसके नजदीक लाने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था उसी को अपोज किया। तो इस प्रकार से हम ऑलवेज इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। यानी अगर फ्लक्स बढ़ता है तो वो क्या करेगा, फ्लक्स बढ़ने को अपोज करेगा, ऐसे डायरेक्शन ईएमएफ करेगा। और अगर फ्लक्स घटता है तो वो घटने से रोकेगा, यानी वह अपने ही कारण का अपोज करेगा जिस कारण से वो इंड्यूस्ड हुआ था। इसलिए हम इसको जैसे सपोज कर लीजिए कि हम अगर इस बात को कहते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल इसी में, कि हम इसे दूर ले जाते हैं,
अब दूर ले जाने से क्या हो गया, दूर ले जाने से, अब ये दूर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, दूर ले जाने से यहाँ रिपल्सन हो रहा है, इसलिए ऐसे डायरेक्शन अगर होगा तो रिपल्सन यहाँ दूर ले जाने में क्या कर रहा है, तो हेल्प कर रहा है, और हेल्प कर, रिपल्सन हेल्प कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि हेल्प नहीं होनी चाहिए, वो क्यों, क्योंकि ये पैदा हुआ है किस कारण से, ये दूर ले जाने से फ्लक्स डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज होने के कारण से ये इंड्यूस्ड करंट हुआ है। तो क्या होगा कि जिस कारण से हुआ उस कारण को अपोज करेगा, यानी डिक्रीज नहीं करने देना है इसको, तो डिक्रीज नहीं करने देना है तो क्या होगा, डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि दूर जा रहा है, तो उसको अपोज करना है, तो ये क्या करेगा, नहीं, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे होगा, ऐसे होगा, यानी कि ये साउथ बन जाएगा, डायरेक्शन इसका इलेक्ट्रिक करंट का उलट गया, और ये क्या करेगा, अब ये नहीं जाने देगा, आपको दूर नहीं जाने देगा, क्योंकि साउथ नॉर्थ में अट्रैक्शन होता है। तो इस प्रकार से ये हम डायरेक्शन को असाइन कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में होगा। तो लेंज लॉ से ये पता लगता है, और इसीलिए जब वहाँ ईएमएफ में हम निगेटिव साइन था, ये निगेटिव साइन ये बता रहा था कि वो ऑलवेज अपोज करेगा। अब इसकी दूसरी जो एस्पेक्ट है वो ये है कि हम एक और जो नेचुरल फैक्ट है वो जानते हैं कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ अगर हम कहते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिला, ईएमएफ मिला, और ये कहाँ से मिला, तो एक लगेगा कि ये तो चमत्कार हो गया कि बिना किसी कॉस्ट पे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये डिसओबे द लॉ ऑफ द नेचर एंड डिसओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए कैसे ये इसको सपोर्ट करता है। सो देखिए, अब हम पहले वाला अगेन उस पे आते हैं। हमने इसको इसके पास ले गया, जब पास ले जाएंगे तो क्या होगा कि जब ले गए, अगर यहाँ पर साउथ पोल पैदा होता, ऐसे पैदा होता ये, यानी ऐसे इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होता, तो क्या होगा, हम थोड़ा सा इनिशिएट कर देते, थोड़ा धक्का दे देते, अपने आप अट्रैक्शन होता, और ये हमको कुछ नहीं करना पड़ता, जो जिस कारण से एस बना है वो कारण इसको सपोर्ट करता और चलना शुरू करता, हमको फ्री में इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाता। तो ये डिसओबे हो गया ना। ऐसा इसलिए नहीं होगा, इसको अपने कारण को अपोज करना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस प्रकार से होगी जिससे ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, और नॉर्थ पोल बन जाने से क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब रिपल्सन जब होगा तो ये अपने से इस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि रिपल्सन है, तो इट रिक्वायर्स ए अदर एजेंट, इसको अदर एजेंट चाहिए, जो एजेंट इसको फोर्स करेगा इधर चलने के लिए, एंड दैट एजेंट विल सप्लाई एनर्जी, वो एजेंट एनर्जी सप्लाई करेगा, जिस एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होगा। मान लिया आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मोटर से या थर्मल पावर में वाटर के वेपर से या पानी के द्वारा हाइडल पावर स्टेशन में पानी रोक करके फ्लो कराते, जैसे भी कराते हैं, तो वहाँ पर क्या उस सोर्स को या मैकेनिकली ही इसको हम ले गए तो हमारी एनर्जी यूज हुआ, और वो एनर्जी चूंकि रिपल्सन के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ा, इसलिए हमारी एनर्जी यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रकार से वी कैन से दैट लेंज लॉ सपोर्ट्स दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये मतलब ऊर्जा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डिसओबे नहीं है, ये लॉ ओबे करता है।